हालेलुया हालेलुया। सो इस तो पहला केरला गीत गाइए सिस्टर ਦੇ ਨਾਲ ਪਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ तो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Heavenly Father, प्यारे खुदावंद यस हालेलुया पिता प्यारे खुदावंद ए मुबारक नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਂ Yes. ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ Yes. ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ Yes. ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ Yes. ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਸਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾ ਲੈਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਪਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਗੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਪਤ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਤਿ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ Hallelujah. Yes, ਧੰਨਵਾਦ Yes. हालेलुया हालेलुया सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे इसका लिरिक्स है तेरी शान में मसीहा तेरी आन में मसीहा पत्थर चिल्लाते Yes. हालेलुया तारीफ तेरी शान में मसीहा हालेलुया तेरी आन में मसीहा Hallelujah. तेरी शान में मसीहा तेरी आन में मसीहा पत्थर चिल्लाते
सिस्टम को बरकत दे और जितने भी इसमें मौजूद हैं सबने बरकत पाई है। आमीन हालेलुया। तो ये ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ। बहुत सारे लोग ने जमीन ऊपर जिन्हों को समा नहीं है कि प्रभु का धन्यवाद कर सकें। बहुत सारे कमां दे विच बिजी हैं, बहुत सारी बीमारियां दे विच हैं, बहुत सारे हस्पतालों दे विच एडमिट ने। वो लोगों तो प्रभु का सच्चा नाम नहीं है कि प्रभु का धन्यवाद कर सकें। और असं देखते हैं इस जमीन तो बहुत सारे लोग चले भी गए और बचन का फैसला कि जड़ी मिट्टी है वो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती। पर प्रभु ने सानू ये समा दिता कि असं सिर्फ प्रभु का धन्यवाद कर सकते। और धन्यवाद करिए प्रभु का। प्रभु ने सानू अंधेरे चों कटिया रोशनी की औलाद बनाया है। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। प्रभु ने साडे उत्ते बेशकीमती सच्चा कलाम प्रगट किया और अपने वचन का प्रकाश दिता है। प्रभु ने साडे उत्ते प्रगट किया है कि वो सच्चा जिंदा एक परमेश्वर है। धन्यवाद करिए प्रभु का। और उस प्रभु के सुंदर वादियां के भी धन्यवाद करिए प्रभु का क्योंकि प्रभु ने साडे नाल बहुत सारे वादे किए ने। प्रभु ने कहा मैं तुहानू कदे भी अनाथ नहीं छड्डांगा। प्रभु ने कहा मैं जगत अनंत तक तुहाडे नाल हां। प्रभु ने कहा तुसीं सच में जानो, सच तुहानू आजाद करेगा। और प्रभु का धन्यवाद करिए जिन्होंने भी प्रभु को कबूल किया है। प्रभु ने अपनी संतान होने का उन्होंने अधिकार दे दिता है। धन्यवाद करिए प्रभु का। प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद करिए प्रभु ने कहा जीवन का जल मैं हाँ, जीवन की रोटी मैं हाँ। जिहड़ा इस जल चों पीता है कभी प्यासा नहीं रहता और जिहड़ा इस रोटी तो खाता है कभी भी भूखा नहीं रहता। धन्यवाद किए प्रभु का कि साड़ियां बीते समय सारियां प्रार्थनाओं को सुनिया, उसने जवाब दिता। ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के वसीले नाल होया। हर चीज का धन्यवाद करिए प्रभु।
हर छोटी तो बड़ी आशीर्वाद और असीं अपनी गलती गुनाहां दा अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि असीं मिट्टी दे बर्तन हाँ, साडे बहुत सारियां कमियां कमजोरियां, पर प्रभु साडा एक परफेक्ट परमेश्वर है। वो साडे हर गुनाह नूं अपने पवित्र लहू दे वसीले नाल धो दिंदा है। प्रभु दा धन्नवाद और धन्नवाद करिए। प्रभु ने कहा कि मैं जानता हाँ आवांगा और तुहानूं अपने नाल लेके जावांगा। प्रभु दा धन्नवाद करिए प्रभु दा। और असीं मंग भी सकते हाँ प्रभु कोलों, हर एक छोटी तो बड़ी आशीष बरकत नहीं मंग सकते हैं प्रभु। प्रभु साडी दुनियावी और आत्मिक जिंदगी च बहुतायत दे विच बरकत आमीन हालेलुया और हर छोटी तो बड़ी आशीष बरकत तेरा शुक्र प्रभु सब दे नाल है। आमीन। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। और आइए हम प्रभु के पाक पवित्र वचन में जाते हैं। लूका सुसमाचार और उसकी 19 अध्याय से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु के पवित्र कलाम में। आइए हम अपना पूरा मन, पूरी जान, पूरी ताकत परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ लगाएं। हमारा मन, हमारा ध्यान अब किसी दूसरी चीज की तरफ ना हो। परमेश्वर की हजूरी में हम परमेश्वर के अंदर डेडिकेट हों, समर्पित हों, अपने आप को वचन के लिए तैयार करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। लूका सुसमाचार उसकी 19 अध्याय, द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक एंड द चैप्टर इज 19, और उसकी 28 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 28 से ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उनमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। वह जा रहा था, तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते ही जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर जला उठाएंगे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही
इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई। क्योंकि वह दिन आएंगे जब तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों के साथ मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा, क्योंकि तूने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ये अवसर नहीं पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा तो उनसे कहा कि लिखा हुआ है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना में करते हैं। प्रभु यीशु मसीहा, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और प्रभु जी, आप हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु जी, आप हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं और प्रभु परमेश्वर, हम अपने स्वरों को आपके आगे झुकाकर खड़े हैं। आप जीते परमेश्वर हैं, हमारे बीच में इंसान के बनाए हुए परमेश्वर नहीं है और कोई भी हमारे पास तस्वीर मूर्ति नहीं है। आप हमारे बीच में देखने वाले और सुनने वाले प्रभु हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें छुएं प्रभु जी इसी वक्त आप प्रभु जी, और हमारा पत्थर का दिल निकाल के एक नरम दिल दें प्रभु जी, हलीम दिल दें प्रभु जी, और जो भी हमारा घमंड हो प्रभु जी बाहर करें प्रभु जी। और प्रभु जी, आज हमारे हृदय को खोल दें कि जो आप हमारे हृदय में खड़े होकर बाहर खटखटा रहे हैं, हम द्वार खोल दें प्रभु जी आपके लिए, और आप हमारे इस दिलों में आए प्रभु जी, आप हमारे जिंदगियों में राज करें प्रभु जी। और प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा को इतिहास में बहुत सारे डिक्टेटर्स ने आपके नाम को, आपके कलाम को रोकने की कोशिश की। लाखों करोड़ों लोग प्रभु जी आपके मारे गए हैं आपके नाम के कारण, पर जितना भी आपके नाम को रोकने की कोशिश की, ये उतना ही बड़ा है प्रभु जी। हालेलुया। जितना आपके लोगों पर आप पर जुल्म हुआ उतना ही बड़ा है, क्योंकि प्रभु जी अगर इंसान चुप रहेगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आपकी सजदे को कोई भी रोक नहीं सकता। डिक्टेटर्स आए और चले गए, आप थे, आप हैं, आप हमेशा रहेंगे। हमारे साथ आज बात कीजिए और प्रभु जी इस जमीन को छोड़ने के लिए हमें तैयार करें, अपनी आमद के लिए तैयार करें, क्योंकि अब इस जमीन के हालात बुरे होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध आ रहा है, जब इस पत्थर के ऊपर पत्थर, ईंट के ऊपर ईंट नहीं रहेगी प्रभु जी, पर आपके लोग मुसीबतों को नहीं देखेंगे, उससे पहले आप अपने बच्चों को उठा लेंगे। प्रभु जी, आज हमें अपने वचन से समझाएं कि हम इंसानों के पीछे ना चलें, आपके पीछे चलें। हम इंसान के बनाए हुए रीति रिवाज धर्मों को ना माने, पर आप जो सृष्टि के रचयिता हैं, आपने जो हमें बोला हुआ है उसको माने। इस आज की सेवकाई को, इस मंडली को आपके हाथों में देता हूँ। चारों तरफ आपके फरिश्तों का पहरा हो जाए, लहू का पहरा हो, इब्लिस दुष्ट आत्माएं कोई भी किसी तरीके से एंटर करके डिस्टर्ब ना कर सके। दिसंबर की मीटिंग्स आपके सेवकों का आना, सारा इंतजाम प्रभु जी आप अपने हाथों में ले प्रभु जी। सबसे अच्छे मैनेजर आप हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, बरेली की मीटिंग्स को जो आपने दास को मौका दिया कि बरेली में भी प्रभु जी आपकी सत्य कलाम को सुनाऊं प्रभु जी, उस बरेली की मीटिंग्स को भी आपके हाथों में देता हूं। जनवरी की प्रभु जी चेन्नई की मीटिंग्स को आपके हाथों में देता हूं। उसके आगे आप जहां भी लेके जा रहे हैं प्रभु जी, भेजने वाले आप हैं प्रभु जी, बोलने वाले आप हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जहाँ भी आप भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ आपका कलाम सुनाऊं और वहाँ के बच्चों को प्रभु जी आपके साथ जोड़ूं और आपकी आमद के लिए तैयार कर सकूं। इस निकम्मे दास को इस्तेमाल करें प्रभु जी।
और बच्चों को प्रभु जी पॉजिटिविटी दूं, फेथ हीलर हो प्रभु जी, वो नेगेटिविटी से बाहर, निराशा से बाहर आ जाएं और आपके दिए हुए जीवन का आनंद बनाएं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम बैठ सकते हैं। प्रभु सबको आशीष बरकत दे और बच्चियों को आशीष बरकत दे। फगवाड़ा से बहुत अच्छा गीत गाया, ये गीत मेरे पूरा दिल से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको रुला देते हैं, आपका मन भराता है। उन्हीं में से ये भी एक प्रभु का गीत है। जब लोगों ने मना किया कि यीशु मसीह की प्रशंसा ना करो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये इन्हें चुप करवा दूंगा तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रशंसा जो है वो कोई रोक नहीं सकता। उसमें इतनी ताकत है कि अगर मनुष्य उसकी प्रशंसा करनी बंद भी कर जाएं, हालांकि ये होगा नहीं, परंतु अगर मनुष्य बंद भी कर दें उसकी स्तुति आराधना करनी, तो वो पत्थरों से करवा लेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने कहा जो मेरा घर होगा वो किसी इंसान की कलीसिया चर्च नहीं कहलाएगा, वो भाई जसविंदर रजिंदर का घर नहीं कहलाएगा, वो भाई रजिंदर जसविंदर की मिनिस्ट्री नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें इतना पाक पवित्र कलाम दिया और प्रभु परमेश्वर ने हमें आज का इस समय का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है जो हम 2022 में रह रहे हैं, आज हमें प्रभु परमेश्वर ने बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। प्रभु के बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और हम देखते हैं पुराने नियम में भविष्यवाणियां है कि परमेश्वर इस जमीन पर आएगा। आमीन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। उसने अब्राहम को कहा कि मैं आशीष दूंगा, तो उसने आशीष दी है। उसने यशाया को बोला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बच्चा जनेगी, वो उसका नाम परमेश्वर होगा। 700 साल के बाद देखिए, 700 साल में सारे लोग भूल जाते हैं अपने किए हुए वादों को, लेकिन 700 साल बाद भी देखिए परमेश्वर अपने वादों को बिल्कुल भी नहीं भूला। 700 साल का जो गैप होता है बहुत बड़ा गैप होता है। इंसान 7 दिन का वादा भूल जाता है। परमेश्वर ने 700 साल पहले वादा किया, 700 साल बाद देखिए परमेश्वर ने अपना वादा पूरा कर दिया। नासरत नगर में एक कुंवारी के द्वारा वो आ गया। फिर प्रभु यीशु मसीह खुद जीते जी उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, बताया था। अगर आप बड़ी गहराई से पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं तो आप देखेंगे प्रभु ने बताया हुआ है कि मैंने आना था, उसके बाद अब मैं सलीब पर चढ़ूंगा, उसके बाद मैं 3 दिन 3 रात कब्र में रहूंगा, उसके बाद जी उठूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभु ने भविष्यवाणियां की है वो की है अपने वापस आने की। आमीन। अगर आप पढ़ते हैं प्रभु ने भविष्यवाणियां की हैं कि मेरा आना तय था, मैं आया और मैं अब सारे मनुष्यों के पापों के कारण, और प्रभु ने क्या किया? अंधों को आंखें दे दी, लंगड़े चला दिए, मुर्दा जिंदा कर दिए। एक भी काम उसका बुरा काम नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई गाली गलोच नहीं। और उसने गरीबों का मसीहा कहलाया, जरूरतमंदों का मसीहा कहलाया, अंधों को आंखें दे के लंगड़ों को चला दिया। उसको उसने बता दिया कि सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा। प्रभु ने शरीर में रहते बता दिया 3 दिन 3 रात में सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, कब्र में रहूंगा, लेकिन जी उठूंगा। लूका सुसमाचार 18 की 33 में भी लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में मत्ती में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे हवाले हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु ने मुंह से बोला कि मैं सलीब पर चढ़ूंगा, लेकिन 3 दिन 3 रातों बाद जिंदा हो जाऊंगा। अगर मनुष्य होता तो ये वादा पूरा ना होता, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। आमीन। वही हुआ। देखिए वो 30 से 3 सलीब पर चढ़ाया गया। सलीब के बाद 3 दिन 3 रात कब्र में रखा गया। जब मरियम मगदलीनी कब्र पर आई तो बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था कब्र के बाहर,
बहनें कहती हम इस पत्थर को हिला भी नहीं सकती, इसको तो बहुत सारे फौज वाले सैनिकों ने रखा है, बहुत सारों ने, हम इनको हिला नहीं सकती। लेकिन उनका अंदर से एक अच्छा हृदय था कि हमने प्रभु को देखना है। आमीन। परमेश्वर उनके इस अच्छे हृदय को जांचता था, देख रहा था। परमेश्वर ने खुद से इंतजाम किया कि इनको प्रभु से आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु ने खुद उस रुकावट को फरिश्तों ने पत्थर उठाया, साइड पे कर दिया। बहनें अंदर गई तो प्रभु वहां पर बिल्कुल नहीं था। वो रोने लगी, हमारा प्रभु यहाँ रखा था। तभी फरिश्ते प्रकट हुए। बाइबल का प्रमाण है कि बाइबल मनुष्यों का नहीं, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य नहीं गवाही दे रहे या फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि ओ बच्चियों, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वो अपने वादे के मुताबिक अब जिंदा हो गया हुआ है। ओ प्रभु का धन्यवाद। ये फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, ना कोई किसी धर्म का गुरु पीर गवाही दे रहा है, ये फरिश्ते गवाही दे रहे हैं। वो जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है, वो सदा युग युग अब जीवित है। प्रभु जिंदा हुआ है, 40 अपने साथ रहा। लेकिन जो प्रभु ने जो वादा किया है अपनी आमद का कि मैं फिर वापस आऊंगा, हम इस पवित्र शास्त्र में देखेंगे क्या सचमुच कोई और आने वाला है या कोई भी नहीं आने वाला है? क्या ये जमीन ऐसे ही चलती रहेगी, पाप में लगातार पाप बढ़ता रहेगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? यूएनओ, एनजीओ सब फेल हो चुकी हुई हैं। कौन है जो इस गुनाहों को, जमीन के ऊपर इतना पाप है जो रोके, लड़ाइयों को रोके, वर्ल्ड वार को रोके? हम अगर देखिए दानियल की किताब में अगर जाते हैं, दानियल की किताब में प्रभु ने बंदोबस्त किया हुआ है, भविष्यवाणियां की हुई है। दानियल की किताब में अगर 9 में जाते हैं तो यहाँ एक भविष्यवाणी की हुई है परमेश्वर ने। पवित्र बाइबल भविष्यवाणियों का पवित्र शास्त्र है। जो उसने सारी कायनात बनाई हुई है वो बेफिक्र परमेश्वर नहीं है। जिसने बनाया है वो इसकी निगाह करता है, ध्यान रखता है, इसके ऊपर जो भी चल रहा है उसे सब पता है। पर अच्छी बात यह है, बड़ी जल्दी सब चीज़ों का खात्मा होने जा रहा है, सब चीज़ों का खात्मा। लेकिन प्रभु ने दानियल 9:24 में समय बता दिया कि कब जो इस ज़मीन के ऊपर शांति आएगी, कब इस ज़मीन के ऊपर प्यार आएगा, कब जो है इस ज़मीन के ऊपर गुनाह खत्म हो जाएंगे, हमेशा हमेशा की शांति होगी इस ज़मीन के ऊपर। दानियल 9:24 में प्रभु ने इसे बहुत ही भेद में बताया है, पर प्रभु के अनुग्रह से हम इन भेदों को अब समझते हैं। प्रभु ने कहा है कि दानियल, तेरे लोगों, तेरे पवित्र नगर के लिए मैंने 70 सप्ताह ठहराए हैं, 70 वीक्स ठहराए हैं, 70 हफ्ते ठहराए हैं, 70 हफ्ते ठहराए हैं तेरे लोगों के लिए। तेरे पवित्र नगर इजराइली यरूशलेम के लिए कितने हफ्ते ठहराए हैं? 70। ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। जो हमारे साथ रेगुलर संगति करते हैं उन्हें पता है ये 70 हफ्तों के बारे में। आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी है कि 70 हफ्तों के बाद क्या होगा? 70 हफ्तों के बाद क्या होगा? अपराध बंद हो जाएगा इस जमीन के ऊपर। अपराध जो है कब बंद होना है? 70 हफ्तों के बाद। सारे पाप जो है जमीन के खत्म हो जाने हैं। आमीन आमीन। अब हम मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं है कि हम खड़े हो और हम कहें जी हम तो 69 हफ्ते में करवा दें, दुआओं प्रार्थनाओं से नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर अपने समय पर करेगा ही करेगा। हम इसे 69 नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, कल नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला कि 70 हफ्ते बाद अपराध बंद हो जाएगा। उससे पहले कोई भी दुनिया की कोई भी संगठन हो दुनिया का, एनजीओ बना लीजिए, यूएनओ बना लीजिए, कोई भी शांति ला नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक शांति का राजकुमार खुद नहीं आ जाता। प्रभु कहता है कि 70 हफ्ते बाद एक तो अपराध बंद होगा, दूसरा पाप का अंत हो जाएगा। पाप का अंत, बस पाप खत्म हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा क्या होगा? कन्फेस भी होगा, पापों का प्रायश्चित किया जाएगा। चौथा क्या होगा?
युग युगों की, थोड़े समय की नहीं, अब हमेशा हमेशा की धार्मिकता प्रकट होगी। थोड़े समय के लिए नहीं, फिर अब हमेशा के लिए इस जमीन के ऊपर क्या होगी? धार्मिकता, प्रेम, शांति, शिफा और ब्लेसिंग, आशीषें जो होगी सदा सदा के लिए होगी। आमीन। और प्रभु कहता है जो भविष्यवाणियां मैं कर रहा हूँ जितनी भी, इन पर फाइनल मोहर लग जाएगी। आमीन है, प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु यीशु मसीह जब वो खुद जमीन के ऊपर आ गया, मत्ती 24 में जब वो जमीन के ऊपर आया, लूका 21 में जाएंगे, मत्ती 24 भी हम नोट कर सकते हैं, मरकस 13, लूका 21, एक ही विषय है सब में। लूका 21 में जब ये प्रभु से सवाल किया गया कि प्रभु परमेश्वर ये देख, वो किसी और बिल्डिंग को नहीं दिखा रहे थे क्योंकि कोई दूसरा भवन इतना सुंदर, इतना महंगा, इतना बड़ा नहीं था उस समय में। उस समय में एक ही भवन सुंदर था और बड़ा था, वो था परमेश्वर का घर, हैकल। चेले क्या दिखा रहे हैं प्रभु को? हैकल दिखा रहे हैं जो दाऊद ने सोची थी, सुलेमान ने बहुत कीमती पत्थरों से बनाई थी। चेलों ने क्यों कहा कि प्रभु इतना सुंदर और इतना बड़ा भवन देख? क्योंकि बाकी के आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स थी, एक तो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, दूसरी उनको बनाने में जो थी पत्थरों का, छेनी का, हथौड़े का इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए बाकी की बिल्डिंगों में वो सुंदरता नहीं थी जो इस प्रभु के भवन की सुंदरता थी। चेलों को दिखाना पड़ा, कहता गुरु कितना सुंदर भवन और कितनी बड़ी ये हैकल है। ये कोई और भवन नहीं दिखा रहे हैं, ये हैकल को ही दिखा रहे हैं प्रभु के दास। क्यों वो सुंदर है? क्योंकि वही एक ऐसा भवन था जिसमें एक तो छेनी नहीं लगी थी, एक हथौड़ा कभी भी नहीं चला था। परमेश्वर ने स्पेशल चेतावनी दी थी सुलेमान को, राजमिस्त्रियों को, कि मेरे घर में कोई भी छेनी ना चले, कोई भी हथौड़ा ना चले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है। कहता मैं ये पसंद नहीं करूंगा जो 24 घंटे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने घर को किस तरह उम्मीद, किस तरह एक्सपेक्टेशन रखता है। वो किस तरह की उम्मीद रखता है? शांति की। पिन ड्रॉप साइलेंस, समझते हैं आप? पिन ड्रॉप साइलेंस, खैर बाहर की चर्चों में होती है पिन ड्रॉप। 2000 बंदा बैठा होगा, 2000, और आप हैरान होंगे कि 2000 बंदा बैठा हुआ, आपको लगेगा हाल खाली है। अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है, जो मेरे भाई बहन बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाना, एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया पे एक वो देखना एरिया जहाँ वेस्टर्न लोग बैठे होते हैं, विदेशी वेस्टर्न लोग, वो पूरा हाल में इतनी शांति होगी। मैंने शकुंतला को ये चीज़ नोट करवाई थी। मैं कहा ये देखिए वेस्टर्न लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग इतने धीरे बात कर रहे हैं, कान में जाने दूसरे बंदे को नहीं पता चल रहा। मैं कहा अब आपको मैं अपना दिखाऊं इंडियन हाल। चेयर पे चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं और मतलब ही नहीं है कि हम धीरा बोलें, साथ वाले को कितनी वॉल्यूम चाहिए। पूरा हाल को पता ही नहीं चल रहा कि खिचड़ी पकी हुई है। बिकॉज एटिकेट्स नहीं है, स्पिरिट अच्छा नहीं है ना। जब एक अच्छा स्पिरिट आता है, साथ में तहजीब एटिकेट्स लेकर आता है। उनको किसने सिखाया? उनको पता है कि एटिकेट्स क्या होते हैं। तो प्रभु ने कहा मेरे घर में ये काम ना हो, ठका ठक ठका ठक ठका ठक शोर वाला, इसमें ना कोई छेनी चले। और उनका ये कन्फ्यूजन थी, प्रभु अब पत्थरों को तो काट के पूरा तैयार करना पड़ेगा। प्रभु कहता उसकी फिक्र ना करो, अगर मैंने ये टास्क दिया है तो मेरी जिम्मेदारी ऐसे पत्थरों को देना। आप हैरान होंगे कि वो प्रभु ने पत्थर तैयार किए हुए थे, प्रभु ने दिए, और वाकई ऐसा हुआ। उनको कोई छेनी नहीं लगानी, पत्थर से काटना नहीं पड़ा। प्रभु दे रहा था उनको, ऐसी शेप के उपलब्ध करवाए, और इस तरह प्रभु का भवन तैयार हुआ, बिना किसी शोर से, बिना किसी डर से। आज वही यहोवा परमेश्वर जो है हमारा है। आज हमसे भी वो क्या उम्मीद रखता है? अगर हमें भी कहे तो यही कहेगा कि मेरे घर में कोई भी शोर और डिस्टर्बेंस
ना हो, सिर्फ यहोवा बोले। और जब यहोवा बोलता है कायनात सारी चुप रहती है। प्रभु परमेश्वर के यहाँ चेलों ने इसलिए भवन दिखाया क्योंकि बाकियों पे छेनी चली थी, शोर से अपने घर बने हुए थे, लेकिन एक ही भवन था जिस पे कोई भी शोर थोड़ी छेनी नहीं चली थी। सब कुछ इतनी सुंदरता से बनाया गया, बड़ा चेलों को वो दिखाना पड़ा। लेकिन आप देखें, वो जो भवन था वो यहोवा परमेश्वर के लिए बनाया था। मंदिर जिसको दिखा रहे हैं वही यहोवा है। देखिए वहां पे एक मामला क्या गलत है। जो भवन बनाया था सुलेमान दाऊद ने, वो यहोवा परमेश्वर के लिए बनाया था। भविष्यवाणी की थी वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा जाएगा। आमीन। जब वही यहोवा आ गया और उसी ने यशाया में से उस भविष्यवाणी को पढ़ा जो उसके बारे में की गई थी। कहता यशाया ये मेरे विषय में कहता है। आज ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। जो हजारों सालों से पहले यशाया ने भविष्यवाणी कर दी थी, आज कहता आज इसका मतलब भविष्यवाणियां पूरी होती है। कहता मैं हूं, मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। कंगाल जो वो दुनियावी फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा था। जिस मेरे बहन भाई के पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, वो सबसे ज्यादा गरीब है। लोग कहते हैं हमारे पास धन बहुत है, अमीर बहुत है। प्रभु कहता है तेरे से ज्यादा कंगाल कोई भी नहीं है। तो प्रभु कहता मेरे को किस लिए भेजा है? जो आत्मिक तौर पे कंगाल हो चुके हैं, आत्मिक तौर पे पता ही नहीं है, जो भी कहता है उसकी मान लेते हैं। जो इधर कहता है इधर चल पड़ते हैं, इधर कहता है इधर चल पड़ते हैं, अब इधर मिलता है इधर। प्रभु कहता मुझे भेजा गया है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। जब उन्हें सुना लिया तो कहता है ये भविष्यवाणी जो हुई थी आज पूरी हो गई। वही देखिए जो कह रहे थे हम मसीह हैं, अब्राहम की औलाद, इसहाक की औलाद, याकूब की औलाद हैं, वंश हैं। उन्होंने ही यहोवा को पकड़ा, उठाया हैकल से बाहर। सिर्फ बाहर नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़े, उसे पहाड़ पर ले गए थे ताकि पहाड़ से उसे धक्का देके। अब वो मनुष्य होता तो धक्का लग जाता, गिर जाता। वो मनुष्य नहीं था। आप देखते हैं कहाँ क्या हुआ होगा, इतनी भीड़ उसे पकड़ के लेके जा रही है पहाड़ से धक्का देने के लिए। जब पहाड़ पर पहुंचे हैं वो वहाँ है ही नहीं। हालेलुया। वो ढूंढे जा रहे, साथ तो पकड़ के लाए थे, कहाँ गया? क्यों? क्योंकि प्रभु कहता अभी मेरा समय नहीं आया और वचन के मुताबिक मैं पहाड़ से नहीं गिरूंगा, मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा। हालेलुया। वचन पूरा होके रहेगा। अब देखिए चेले इस बात के लिए वो भवन दिखा रहे हैं। अगर कोई और गुरु होता है तो कहता, प्रशंसा करता, वाह क्या मेरा घर बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि उसे दुनियावी घर से, दुनियावी चर्च से मतलब होता होगा और वो कहता होगा हाँ मेरे लिए बहुत सुंदर चर्च बनाया। लेकिन यहाँ आप देखिए कि परमेश्वर सबसे ज्यादा किसे अहमियत देता है? अपनी इस दुनिया के पत्थरों से बनाए हुए चर्च को या अपने वचन को? ध्यान देखिए, प्रभु ने यहाँ नहीं कहा यार बिल्कुल पतरस मैं सुलेमान दाऊद से बहुत खुश हूँ, इतना सुंदर मेरा चर्च बनाया है, बहुत अच्छा, मेरे को खुद पसंद है। लेकिन जवाब क्या आ गया? जवाब देखिए क्या आया। वो कह रहा है तुम ये बड़े बड़े भवन देख रहे हो, एक दिन आएगा जब इस पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा जो उठाया ना जाएगा। लूका 21:5। चेलों ने दिखाया है सुंदर चर्च, प्रभु ने उसकी कोई प्रशंसा नहीं की। प्रभु कहता है ये तो ढा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो भवन जो था जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आने वाले अब्राहम के वंश ने उस मकसद से को पूरा नहीं किया, उस मकसद को हट गए, उस मकसद से पीछे हट के दूसरा मकसद बना लिया। अगली आने वाली पीढ़ियां पुराने बुजुर्गों के मकसद को सही नहीं रख पाती। जो सुलेमान दाऊद का मकसद था कि मैं यहोवा का भवन बनाऊंगा, यहोवा यहाँ रहेगा, आने वाली पीढ़ियों ने उस मकसद को सही नहीं रखा। उन्होंने ही यहोवा को बाहर निकाल दिया। अब जिस चर्च से, जिस घर से,
जिस भाई से, जिस बहन से यीशु मसीह निकल जाता है, जब जिनके घरों से अगर यीशु मसीह निकल गया, जिनके चर्च से यीशु मसीह निकल गया, जिस भाई के दिलों से यीशु निकल गया, जिस बहन से यीशु निकलता है, तब क्या आता है? शराब, दुख, तकलीफ, बीमारियां, दुश्मन आपके ताकतवर हो जाएंगे, गरीबी भयंकर आ जाएगी, कर्जा भयंकर आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि अब यीशु नहीं है जिससे ये सारी चीजें दूर रहती है। भवन तब तक सुरक्षित था जब तक यहोवा था। आप तब तक सुरक्षित हैं जब आपके अंदर यहोवा है। जब यहोवा आप निकाल देंगे, वो निकलता कब है? जब आप उसको इज्जत नहीं देंगे, उसके कलाम की इज्जत नहीं करेंगे, वो वहाँ से निकल जाएगा। जब आप यीशु मसीह को अंदर नहीं रखेंगे, उसके वचन को अंदर नहीं रखेंगे, वो आप में से निकल जाएगा। और जब उसका पवित्र आत्मा निकलता है तो शैतान का आत्मा अपने से 7 बुरी आत्माएं लेकर अंदर आ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो पहरेदार था आपने निकाल दिया। फिर प्रभु कहता है जब प्रभु ही निकल आता है तो फिर प्रभु के लिए वो भाई, वो बहन, वो बड़ी बिल्डिंग, वो बड़ा चर्च कोई मायने नहीं रखता जब आपने प्रभु को निकाल दिया वहां से। मंदिर तभी अच्छा है जब तक अंदर यहोवा है। एक भाई बहन तब तक अच्छा है जब तक परमेश्वर उसके अंदर है। प्रभु ने कहा कि अगर उन्होंने मुझे ही निकाल दिया, अब सुनो इस सुंदर भवन का क्या हाल होगा जिसके लिए तुम घमंड करती हो। एक पत्थर पर अब दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। जब हमने यीशु मसीह को निकाल दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम सुरक्षित हैं 101%, तो उसका कारण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने फिर आगे वो सवाल पूछते हैं एकांत में आके, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे? ये बातें कब होंगी? तेरे वापस आने की निशानियां और जगत के अंत की निशानियां क्या होंगी? 3 सवाल है। प्रभु तीनों का उत्तर दे रहा है। जो सबसे पहले नंबर पे रखा प्रभु ने, वो कह रहा है कि भरमाने वाले आएंगे, कंफ्यूज करने वाले इतने ज़्यादा आ जाएंगे। जबकि इसने कहा है मेरा घर पास्टर जसविंदर की सेवकाई नहीं कहलाएगा, मेरा घर भाई रजिंदर की मिनिस्ट्री नहीं कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु कहता है सावधान रहना। सबसे पहले हमें क्या रहना है? बी केयरफुल। पर हमें सावधान रहने के लिए हमें सही तो कुछ पता होना कि असलियत क्या है और नकल क्या है, सत्य क्या है और मिलावट क्या है। हम नकल तभी पकड़ पाएंगे जब हमारे पास असल हो। हम नकली पैसे तभी पकड़ पाएंगे जब हमारे पास असली पैसे हो। और असली सिर्फ जो है परमेश्वर का वचन है, बाइबल ही सिर्फ असली है। आमीन। आमीन। जो भी कुछ आता है आप सुनते हैं, आप उसे बाइबल में खोलें, अगर फिट हो जाता है, किसी ने भी कहा है बाइबल में फिट हो जाता है तो आमीन है। आमीन। अगर बाइबल से फिट नहीं होता है उसी वक्त उसे बाहर कर दें। आमीन। प्रभु कहता बहुत से आके मेरे नाम से कहेंगे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तुम क्या कर सुनोगे? जगह जगह लड़ाई झगड़ों की चर्चा सुनोगे, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, भूकंप बढ़ेंगे, अर्थक्वेक जो है बढ़ जाएंगे। आपने देखा कुछ महीनों से लगातार अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने कहा है पर तुम्हें मैं ऐसी बुद्धि दूंगा। हालेलुया। 14 आयत में जब प्रभु ने आपको चुना होगा, आप पहले से नहीं सोच सकेंगे कि मैं पुलपट पे खड़े होके क्या बोलना है, क्योंकि ये जब प्रभु आपको चुनेगा तो आपकी बुद्धि का काम नहीं होगा। आपको ये तो पूरी बाइबल ही आपका विषय है। आपके पास एक टॉपिक नहीं होता बोलने के लिए, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जो मैं तजर्बा बताता हूँ, आप जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि प्रभु क्या संदेश है आज का, लेकिन जब आप पुलपट पर खड़े हो जाते हैं
तब ये उस वक्त मौके पे आपका सारा जो है आगे का विषय आ जाता है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जो अपनी मर्जी से उठा होगा वो रात को रट्टे जरूर मारेगा, लेकिन सुबह भूल जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो सारी बाइबल को लिखाने वाला वही है। प्रभु कहता है इसलिए अपने मन में ना ठान रखना कि हम पहले से ही ना सोच के रखना कि हमने क्या बोलना है। जब आपकी कॉलिंग प्रभु की तरफ से है तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के अनुग्रह से जब से ये तजुर्बा हुआ है, बुलाहट हुई है, मैंने कभी नहीं नोट किया रात को बैठ के कि सुबह क्या बोलना है, क्योंकि ये प्रभु के पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु कहता पहले से ना ठान रखो कि क्या बोलना है। 15 आयत में प्रभु की आशीष देखें आप, जिन्हें प्रभु भेजता है, क्योंकि मैं खुद तुम्हें ऐसा बोल दूंगा। अब देखिए, जब आप निकलते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने तैयार किया होता है। एक भाई की हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उसे आंखों की दवाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? झोला छाप डॉक्टर हैं आप। एक भाई बहन का नाक खराब है, आप कान की दवाई दे रहे हैं, इसका मतलब झोला छाप डॉक्टर हैं। और प्रभु ने जो नहीं भेजे ऐसे संत सेवक भी झोला छाप संत सेवक भी हैं। और जो पवित्र आत्मा है वो सबसे बड़ा डायग्नोज है। किसी भी भाई बहन की क्या कमी है सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा जानता है, और उसको जो चीज की जरूरत होती है पवित्र आत्मा उसे मौके पर वो दवाई मेडिसिन दे देता है। आमीन। प्रभु कह रहा है कि मैं खुद तुम्हें ऐसा बोल और क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। प्रभु की तरफ से और अपनी मर्जी की तरफ से फर्क होता है। जब प्रभु भेजता है तो प्रभु खुद ही संदेश देता है, बुद्धि देता है, बोल देगा। और फर्क क्या होगा? देखिए क्या फर्क होगा। आप ये नहीं कहेंगे भाई जी मेरे साथ चले, उस भाई को जवाब दें, पास्टर जी इसका क्या जवाब है? इसका मतलब है आपका भी अभी काम कच्चा है, आप डिपेंड है। प्रभु जो कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बोल बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि रुको मैं फोन करता हूँ, वो हमारे बड़े गुरुजी हैं वो जवाब देंगे। फिर भाई आप क्यों मानते हो? आपके खुद के सवाल क्लियर नहीं है अभी। पर प्रभु की कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बह रखेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन देखिए आप, जबरदस्त सेफ्टी हमारी। 18 आयत, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। और क्यों डरे हम किसी से? लोग हमसे बैर ही रख सकते हैं लेकिन हमारा नुकसान, प्रभु कहते तुम्हारे सिर का। अब मुझे नहीं पता, जो अपनी मर्जी से चले होते हैं उनकी सुरक्षा फिर वो प्रभु नहीं करता। जिसको प्रभु भेजता है उसकी सुरक्षा प्रभु खुद करता है। माफ कीजिए, अब आप देख लीजिए, जो अपनी मर्जी से निकले होते हैं फिर वो खुद से जिम्मेदार हैं। जब प्रभु भेजता है तो प्रभु आपकी आगे आगे रहनुमाई करता है। आमीन। और एक तो बात है, आप किसी को बुरा बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ जो वचन कहता है उसका प्रचार करें। आमीन। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने प्राणों को बचाओगे, तुम्हारे प्राण कोई ले नहीं पाएगा। आमीन। पर बचाओगे कैसे? उसका तरीका, तुम अगर धीरज रखोगे तो अपने प्राणों को बचा लोगे। आमीन है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना उसका उजड़ जाना निकट है। अब बात चली जाती है यरूशलेम की। खैर ये बाद की बात है। यरूशलेम जो है बाद में घिरा जाना है, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। अभी नहीं है रशिया ने आके घेर लेना, अभी नहीं। रैप्चर के बाद जो है, इस चीज को समझे, रैप्चर के बाद यरूशलेम सेनाओं से घिरा जाना है, क्योंकि वर्ल्ड वार फिर शुरू हो जाएगी। पर जो प्रभु के लोग हैं जमीन से उठाए जाएंगे। हमें पता होना चाहिए रैप्चर से पहले क्या होना है और रैप्चर के बाद क्या होना है, हमें पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है?
21 आयत में प्रभु ने जो वचन दिया है वो यहूदियों को दिया है, अन्य जातियों को नहीं, क्योंकि अन्य जातियों की दुल्हन प्रभु के पास इस वक्त बैठी हुई है। आमीन। प्रभु कहता है जो यहूदिया में है, अन्य जातियों का मामला नहीं है, वो यहूदिया में है, वो पहाड़ों पर भाग जाएं, वो पहाड़ों पर भाग, जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो उसमें ना जाएं, क्योंकि ये बदला लेने का दिन ऐसा होगा कि लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। हाय उन दिनों गर्भवती कोई दूध पिलाती होगी उन पर हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश, अशांति, अपीति होगी, तलवारें, मजदूर, अन्य जातियों का जब तक समय पूरा ना हो यरूशलेम रोंदा जाएगा। यहाँ प्रभु कहता अन्य जातियां हम जब तक चुने हुए पूरी रीति से मिडल नहीं, कंफ्यूज नहीं, 100% पूरी रीति से चुने हुए जब प्रभु में आ जाएंगे तब देखिए जो है तब तक यरूशलेम रोंदा जाएगा। फिर सूरज का रोशनी नहीं देगा, चांद में चिन्ह दिखाई नहीं देंगे, यानी ये लाइट्स जो है एक दिन बंद होनी है, सूरज की रोशनी खत्म होनी है, चांद की रोशनी खत्म होनी है, मिनटों में मामला खत्म, बड़े से बड़ा घमंडी इंसान मिनटों में खत्म हो जाएगा। प्रभु कहता नाम तक नहीं रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा संकट होगा कि समुद्र की लहरें भी हिल जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह 3 नाम दिए गए हैं, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। क्या 3 पुत्र आए थे जमीन पर? आमीन है। त्रेता वालों के लिए एक और ये सवाल, वो क्या 3 अलग अलग थे? दाऊद का पुत्र अलग था, मनुष्य का पुत्र अलग था, परमेश्वर का अलग था? नहीं, वो नाम 3 थे लेकिन है एक। प्रभु कहता था मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ महिमा के साथ बादल पर आता देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रभु ने हमें बोल दिया हुआ है, देखिए 28 आयत हमारे लिए है। हमारे समय में परमेश्वर के आने के भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। हमारे समय में प्रभु आ रहा है। हम लोग जो हैं, हम ही वो लोग हैं जिनके शरीर बदलने जा रहे हैं। हम ही लोग बादलों पर प्रभु को मिलने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा अगर तुम्हें ये सब पता है, तुम्हारे समय पे ये हो रहा है और तुम विश्वास रखते हो, तो प्रभु ने कहा है कि तुम निराश होकर सरों को नीचे न करना। प्रभु कहता है कि जब ये चीज़ें पूरी हो रही है, अगर ना पूरी होती तो तुम्हें पता लग जाता अभी समय पड़ा है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, परिवार पालने हैं, परिवारों का खर्चा है, घर बनानी है, गाड़ियाँ बनानी है, सेटल होना है, क्योंकि अभी समय पड़ा है। लेकिन प्रभु कहता है जब तुम्हें पता लग जाए कि अब समय नहीं पड़ा, मेरे आने की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, मेरा आना नज़दीक है। जो चिंताएं तुम्हें सर उठा के जीने नहीं दे रही थी, चिंता थी बच्चों का क्या होना है, आगे पढ़ाएंगे कैसे, शादियाँ कैसे करेंगे, प्रभु कहता है जब ये बातें होने लगे, 28 आयत में बहुत आशीष है, बहुत आशीष है। आमीन। इस आयत से मैं समझता हूँ आपके बोझ सारे खत्म हो जाएंगे, चिंताएं सारी खत्म हो जाएंगी, अगर इसको आप एक अच्छे हृदय से इसे समझते हैं और मेडिटेट करते हैं। जब ये बातें होने लगे, शुरुआत ही हो जाए, जब इन बातों की शुरुआत हो जाए, और 1948 से शुरुआत हो चुकी हुई है, क्योंकि इजराइल आज़ाद हो गया हुआ है, प्रभु के आने की घंटी बज चुकी है। प्रभु कह रहा है उससे पहले था कि पिछले वाली जनरेशन के लिए टेंशनें थी, क्योंकि समय बड़ा था, बच्चे पढ़ाने लिखाने सब कुछ सेटल है। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे समय में जो है होने लगे, 1948 वाले लोग नहीं हैं, हम 2022 वाले हैं, हम तो किनारे पर हैं। शुरुआत तो होने लगी थी 1948 से, प्रभु के आने की शुरुआत हो गई थी। हम तो होने लगे वाले नहीं हैं, हम तो बस पूरी खत्म होने वाली है। आमीन है। प्रभु कहता है तो सीधे होकर,
पहले चिंताओं ने, जिंदगी के बोझों ने हमें उठने नहीं दिया, फिक्रों ने। क्या फिक्र ही मार लेते हैं इंसान को कि बच्चों का क्या होगा, आगे पढ़ाना, यही फिक्र है और क्या, घर बनाना, ये बनाना है। जब आपको पता चल जाए कि मामला बस जल्दी खत्म होने वाला है, अगर प्लाट ले भी लिया, मुझे नहीं लगता घर बना पाओगे। बच्चों को मुझे नहीं लगता कि आप एमए तक पहुंचा पाओगे। 2005-6 में भाई फ्रैंक इंडिया में आए, तो कहते खुदा ने, मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इंडिया में जा, बरेली में मेरे दास को मिलके आ। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं उसी परिवार के पास जा रहा हूँ। वो परिवार मसीहत में बहुत पुराना परिवार है और उनके फादर का नाम विलियम दास था, जिन्होंने यूपी में अंत समय पे का उनका बहुत कार्य किया। और भाई फ्रैंक के साथ बहुत पुराने समय से वो खड़े होकर वहाँ अंत समय का काम कर रहे हैं। अब उनके जनरेशन बच्चे हैं जिनके पास मैं जा रहा हूँ दिसंबर में बरेली में। तो प्रभु ने कहा कि मेरे दास को मिलके आ। भाई फ्रैंक कहते मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने कहा है मिलके आना। हम लुधियाना से गाड़ी की, टैक्सी की और हम दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव किया और उनको साथ में बिठाया। वो बरेली का रास्ता और दिल्ली के रास्ते में वो कभी चुप नहीं बैठते, ना आपसे कभी ये पूछेंगे कि आपका क्या हाल है, आपके बच्चों का क्या हाल है। कभी भी मैंने उनके मुंह से ये बातें नहीं सुनी भाई फ्रैंक से। वो आपके पास आएंगे, कभी नहीं पूछेंगे आपका क्या हाल है बच्चे, वो सीधा वचन शुरू कर देंगे। आमीन आमीन। पूरे सफ़र में वो कहते कोई सवाल है तो पूछो। मुझे हमेशा से यही शौक़ था जानने का प्रभु की आमद का। मैंने कहा हम एक्सपेक्टेड कितना समय रख सकते हैं प्रभु के आने में। कहते एग्जैक्ट डे, दिन और वो हफ्ता वो हमें नहीं पता, लेकिन हम कहते हमारी जनरेशन जो अब है, हम बुजुर्गों की, इसके बाद आपकी जनरेशन भी है, इसके बाद आपकी भी जनरेशन है। लेकिन एक ये बात सत्य है, आपकी अगली जनरेशन की अगली जनरेशन आमीन। आप अपने बच्चों की अगली जनरेशन नहीं देख पाओगे, इतना समय बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरी कॉलिंग है मत्ती 24:45 वाली, आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता तो सीधे होकर अब हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस ज़मीन की चीज़ें हैं उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत है जो स्वर्ग से रिश्ता रखती है। मुक्ति, उद्धार, रैप्चर जो है स्वर्ग से। किस चीज़ की चिंता करनी है कि हम ज़मीन पर ना रह जाएं, हमारे बीच में ऐसा कोई गुनाह ना हो जब प्रभु आए हमें साथ लेके ना जाए। क्या हमारी दुआ प्रार्थना रेगुलर है, हमारी संगति रेगुलर है? बपतिस्मा जो है ये आखिरी काम नहीं होता, बपतिस्मा पहला काम होता है प्रभु की तरफ बढ़ने का। बपतिस्मा अगर आपने ले लिया है, अगर आप पूरी तरह संगति में, मसा में नहीं रहे, शैतानी एविल स्पिरिट फिर आप पर हमला करेंगी। लेकिन जब आप रेगुलर दुआ प्रार्थना प्रभु भोज में, मसा में बने रहेंगे बादल के नीचे, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रभु कहता है जब ये बातें आने लगे तो सीधे होकर अपने सिरों को उठाना। आमीन। अब हमें जरूरत नहीं है ऐसे चलने की, अब हमें जरूरत है ऐसे सिर उठा के। क्यों? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा अब निकट है। हालेलुया। बहुत नजदीक है हमारा छुटकारा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु कहता है अंजीर के पेड़ से फिर सीख लो। हमें प्रभु ने क्या एग्जाम्पल दी है? कौन सी एग्जाम्पल दी है? अंजीर का पेड़। प्रभु कहता है अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अब क्या हम एक पेड़ लगाएं घर पर अंजीर का और उसको सुबह शाम देखना लग जाएं? देखिए यही होता है। प्रभु ने जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ, बपतिस्मा, बाइबल का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रिजेक्ट कर दिया, उनके लिए ये सारे दृष्टांत है। उनको नहीं समझ आएगी, उन्हें यही लगेगा अंजीर के पेड़ को देखना है। पर जिन भाई बहनों ने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा फिर इस अंजीर के पेड़ का प्रकाश खोलता है कि ये इज़राइल है। अंजीर का पेड़ क्या है? इज़राइल है। अब कितना टाइम हुआ है, मुझे क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है? घड़ी मुझे बता रही है 12 बज गए ना। अगर मैंने देखना है कि आज दिन कौन सा है, मैं कैलेंडर देखूंगा कि आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है।
पर अगर मैंने देखना है कि दुनिया का अंत कब है, प्रभु का आना कितनी नजदीक है, मैं क्या देखूंगा? मैं इजराइल को देखूंगा। आमीन। इजराइल जो है वो टाइम पीस है प्रभु की आमद का। प्रभु कहता है अंजीर के पेड़ को देखना। हमने इजराइल की एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। हालेलुया। और प्रभु कहता है फिर अंजीर के साथ साथ बाकी के पेड़ों को भी देखना। अगर अंजीर इजराइल है तो बाकी के पेड़ भी देश ही है ना। इसका मतलब है हमने रोजाना सारी दुनिया पर खबरों पर निगाह रखनी है, कहाँ क्या चल रहा है, हमें पता चल जाएगा प्रभु के आने का। अब आप देखिए पूरी दुनिया में पाप शिखर पर है, पाप शिखर पर है। कतर में देखिए फीफा कप हो रहा है। कतर कंट्री का लॉ है कि होमोसेक्सुअल इज ए क्राइम, अच्छी बात है। लेकिन दुनिया भर के जो होमोसेक्सुअल संगठन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कतर के खिलाफ कि हम फीफा कप में नहीं जाएंगे, हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। ये क्या है? ये अंत समय है, ये अंत समय है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। ये अंत है, अंत है, अंत है, वर्ल्ड वार है। अब प्रभु कहता सब पेड़ों को देखो। पर प्रभु कहते हैं जब अंजीर के पेड़ की कोपले निकले, एक पेड़ सूखा होगा, क्या है? पेड़ सूखा होगा, पर कोपले तब निकलेंगी, पहले ये जरूरी है सूखा होना चाहिए, ऐसा ही है। एक पेड़ जो है कोपले तब निकलेगी जब वो क्या है, सूखे से हरा भरा होना शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के पास आया, प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के पास आया। प्रभु परमेश्वर ने इसी लूका की इंजील में ये घटना हुई है। प्रभु को भूख लगी, प्रभु को भूख लगी और वो इस अंजीर के पेड़ के पास आया और प्रभु ने कहा कि मेरे को भूख लगी थी, मैं तुझसे फल लेने आया था, पर तूने मुझे फल नहीं दिया और अब से तुझे फल ना लगे। मत्ती की अंजील भाई 21 की 19 में जाए, मत्ती की अंजील 21 की 19 में जाए आप। यहाँ पे देखिए है दृष्टांत है, लेकिन अगर हम बिना पवित्र आत्मा से पढ़ेंगे हमें लगेगा प्रभु को भूख लगी थी, अंजीर के पेड़ से वो फल लेने आया, वहाँ फल नहीं लगा। जो परमेश्वर जगत बनाने से पहले उसका अंत जान रहा है, जो बातें होने वाली है पहले ही बता रहा है, उस प्रभु को ये नहीं पता कि उस पेड़ पर फल नहीं है, उसे पता है। लेकिन वो जो भी करता है उसके बीच में महान प्रकाश होता है। दुनिया ये देखेगी वो सलीब पर चढ़ा, अपने आप को बचा नहीं पाया, पर दुनिया ये नहीं देखेगी उसने आने से पहले ही बोल दिया था, उसने आने से पहले बोल दिया था फिर मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। वो लोग वो नहीं उठाएंगे कि जो उसने पहले बता दिया था सलीब पर चढ़ना और उसने पहले बता दिया था जिंदा होना भी, वो नहीं बताएंगे। प्रभु परमेश्वर देखिए यहाँ 21 की 18 में, जब भोर को नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर गया और उसके पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया। एक पेड़ पे फल ही नहीं है, वो पेड़ किस काम का? एक भाई बहन के पास पवित्र आत्मा के फल ही नहीं है तो वो भाई बहन किस काम का? पवित्र आत्मा के फल विश्वास, प्रेम, धीरज, शांति। जिस भाई बहन के पास फल ही नहीं है उस भाई बहन को का कोई फायदा नहीं है। इस पेड़ पर पत्ते हैं, अकेला मसीह होना पत्ते लेकर आप जो है प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे, आप निराश कर देंगे। प्रभु आपके पास आता है, आपके पास फल नहीं है और कले पत्ते हैं कि आप हम ईमानदार हैं, विश्वासी हैं जी, प्रभु निराश हो जाएगा क्योंकि वो आपसे पत्ते नहीं चाहता, वो आपसे फल चाहता है। और जहाँ पर क्या हुआ, उसको भूख कौन सी, जिस्मानी भूख नहीं होती प्रभु को रूहानी भूख होती है। आमीन है, आमीन। और जब वो अपने लोगों के पास आता है, उन्हें ईमानदार देखता है, यही उसका खाना है। तो कहता मैं इसलिए आया, मैं अपने पिता, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता का कार्य पूरा करूं। तो उसमें पत्तों को देखकर कुछ ना पाया तो प्रभु कहता अब से तुझे फल ना लगे, अब से तुझे फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद नहीं, मुंह से वचन निकला है और पेड़ सूख गया।
आमीन। आमीन। चेले जो पीछे खड़े थे कहते ये कैसा गुरु है, पेड़ तक सुखा दिया। हालेलुया। और क्या चंबा था कि पेड़ ऊपर से नहीं सूखा था, नीचे पूरा जड़ तक सूख गया। हालेलुया। प्रभु कहता तुझे फल ना लगे। साथ में प्रभु ने चेलों को भी मैसेज दे दिया, वचन दे दिया। कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम भी विश्वास रखो, प्रेयर करनी है, डाउट नहीं रखना, साथ में प्रार्थना करनी है, बीच में शक नहीं रखना। प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास रखो, शक ना करो, तो केवल यह जो करोगे बल्कि इस अंजीर से पेड़ से मैंने जो किया है तुम भी करोगे। परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे, प्रभु का धन्यवाद हो, अगर इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, इसका मतलब ये नहीं हम पहाड़ों को उखाड़ने लगे। पहाड़ का मतलब यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स अगर पहाड़ जितनी बड़ी भी हैं, अगर हमारी समस्याएं पहाड़ जितनी बड़ी हैं, तो प्रभु कहता अगर तुम विश्वास के साथ इन पहाड़ को हुक्म करोगे, वो उखड़ के समुद्र में चला जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। अंजीर का पेड़ सूख गया। प्रभु कहता 3 वर्ष तेरे से क्या लेने आया फल। कितने वर्ष? प्रभु ने यही बात मेरे लूका में लिखा हुआ है, 3 वर्ष तक मैं तेरे से फल लेने आया। लूका की सच अंजील में ही आप देखेंगे। और प्रभु कहता है कि मुझे फल नहीं मिला। प्रभु का धन्यवाद। लूका 13:7 प्रभु कहता है कितने साल तेरे पास फल लेने आया। प्रभु का खुद का जो जीवन रहा है तकरीबन 33 साल का रहा है। 3 BC में प्रभु का जन्म हुआ है, तकरीबन 3 AD में प्रभु को सलीब पर चढ़ाया। और बाइबल कहती है 30 वर्ष के बाद उसने अपनी सेवकाई शुरू की। कब? 30 वर्ष के बाद, क्योंकि शरह के मुताबिक 30 साल से पहले सेवकाई शुरू। उसने कहा था मेरे भवन में 30 साल से कम कोई भी ना हो सेवकाई के लिए मैच्योर। अब ये क्या हुआ 13 के साथ, तब उसने कहा बारी के रखवाले से कहा कि मैं कितने सालों से फल लेने आ रहा हूँ। हमारे पास प्रभु परमेश्वर बहुत बार आता है उम्मीद रख के कि हम आज भी प्रभु के साथ सही हुए होंगे। इस इज़राइल को कितना समय दिया प्रभु ने? 3 साल प्रभु ने इसे पूरा मौका दिया तौबा करने का, मन फिराने का। आज यही प्रभु परमेश्वर हमारे पास आता है कि हम आज सुधर जाएं, आज सुधर जाएं, आज ठीक हो जाएं प्रभु से। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। प्रभु कहता आओ मैं तेरे साल 3 वर्ष तक अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आया। प्रभु हमारे पास बार बार आता है फल ढूंढने, लेकिन हमारे में फिर भी एटीट्यूड है, गाली बकना, लड़ाई झगड़ा करना, घर में दूसरों को इज्जत ना देना, अपनी ही इज्जत रखवाना। जो स्वभाव हम अपने पे पसंद नहीं करते दूसरों पर लागू करते हैं। अगर हम पर कोई चिल्ला दे तो हम नाराज हो जाते हैं, अगर दूसरों पर हम चिल्लाते रहते तो कोई बात नहीं। तो ये गलत है। प्रभु ने कैसा ऐसा स्वभाव तुम अपने से चाहते हो सभी का, पहले अपना रखो वैसा। अगर आप सबको थ्रेट करते हो, शाउट करते हो, तो खुद भी वो थ्रेट और शाउट सुनने की हिम्मत रखें। शुरुआत हम ही से होगी। आप एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरा पहले सुधे। लड़ाई कब खत्म होगी? पहले आपको ही झुकना पड़ेगा। और ये शर्म की बात नहीं है, प्रभु आपको बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आया। आप निराश ना भेजे प्रभु को। जब प्रभु आपके पास आता है आप बड़े सोबर इंसान होने चाहिए, वचन में मजबूत, वचन में कट्टर और दिल से पूरा नरम होने चाहिए आप। हालेलुया। प्रभु कहता है पर तूने 3 वर्ष तक मुझे फल नहीं दिया। ऐसा ना हो कि हम भी प्रभु को निराश करके भेजें बार बार। फिर क्या होता है जब उसकी एक लिमिट खत्म हो जाती है? प्रभु कहता है इसे काट दो, इसे काट दो। ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम बार बार प्रभु को निराश भेजेंगे तो एक दिन आएगा वो इजाज़त दे देगा हमें काटने की। प्रभु कहेगा अब इसको काट दो, इसको ख़त्म कर दो,
जमीन पर इसका रहने का, फिर प्रभु जमीन से भी उठा लेता है कई बार। हमें हमारी उम्र पड़ी भी हो चाहे, और हमारे क्रोध, हमारे गुनाह जो होते हैं, हमें पहले ही जमीन पे शाऊल को, अहाब को भी परमेश्वर जल्दी उठाने वाला था पापों के कारण, पर अहाब ने उसी वक्त कपड़े फाड़े, सिर पर स्वाह मली, तौबा करने लग गया, कहता प्रभु मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे ना मार। नबी अभी ग्राउंड में ही था, प्रभु ने मैसेज दिया, कहता वापस जा, देख अहाब मेरे सामने कितना हलीम हो गया, उसको जाके खुशखबरी दे दे कि मैंने उसकी मौत कैंसिल करके कुछ साल और बढ़ा दिए। हालेलुया। एक दुष्ट पापी मरने वाला घुटने बैठ के माफी मांग के उम्र बढ़वा गया। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इधर आइए, प्रभु कहता है इसे काट दो, ये बेफिजूल जमीन रोक रहा है। हम वेस्ट ना हो जाए प्रभु के लिए, किसी ऐसा ना हो कि हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अकेला सेवकाई, अकेला पास्टर का काम नहीं होता, हर एक भाई बहन जो है इसमें हिस्सेदार है। हर एक भाई बहन कीमती है। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने से लेके बच्चियां गीत गा रही हैं, आप पानी पिलाने वाला, सारे अगर आप बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, तो बाकी आशीष ले जाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, आप जहाँ पर भी हैं वहीं पे कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करें। आगे प्रभु एक बड़ी आपके लिए पोस्ट तैयार कर रहा है। जब आप छोटे पर ईमानदार नहीं हैं, सभी पास्टर जन्म से पास्टर नहीं थे, सभी अपोस्टल जन्म से अपोस्टल नबी नहीं थे। जब हम प्रभु में आए हैं, हम सीखा वचन रहे अंडर, जहाँ ड्यूटी लगी, सेवक को कभी कार चलाने का मौका नहीं दिया। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, हमारे सेवक ने नहीं कभी स्टीयरिंग पकड़ा था। हम कहते थे आप बैठिए। ड्राइविंग इज ए वेरी वेरी टायर्डफुल वर्क, बहुत थका देता है, आप हिल नहीं पाएंगे। पर एक साथ बैठने वाला कहेगा इससे क्या, इससे कुछ नहीं होता। आप किस साइकिल चलाने वाले को जहाज चलाना थोड़ी बताते हैं क्या कैसे चलता है। एक भाई जो ड्राइवर है उसे पता होता है कि इंसान जो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है उसके लिए वो थकान देने वाली, आप ना दाएं देख सकते ना बाएं, 8 घंटे ऐसे देखना है। तो सेवक कहते हैं आप बैठिए, आपके पास वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी सेवकाई हम भाइयों को दे दें। हालेलुया। आपने जाके खड़े होके खुदा का वचन देना है, रूहें बदलनी है। हालेलुया। ये जिम्मेदारी हमने कैसी देखी है, इवन गाड़ियां तक चलाई हैं पास्टर की। तब जब प्रभु कहता है जो छोटे में ईमानदार है, फिर वो बड़े में ईमानदार जरूर होगा। जो छोटे में ईमानदारी नहीं कर रहा उसको पता लग जाता है कि ये बड़े में ईमानदार कभी नहीं। आप प्रभु को बहाने मत लगाएं लोगों को कि मेरी तो 1000 रुपया तनख्वाह है। आप ऐसा बहाने प्रभु को मत लगाएं प्लीज। एक औरत ने जितना उसके पर्स में था सारा डाल दिया। लोग करोड़पति इतने इतने डॉलर डाल रहे थे। प्रभु कहता नहीं, सबसे ज्यादा दान इस बुजुर्ग बहन ने दिया। चेले फिर अपनी दुनियावी आंखों से कह रहे हैं, कहते उसने तो पैनी दी है। कहता उसके पास थी पैनी, उसने तो जीवन भर की कमाई डाल दी है। उसके पास जितना था दे दिया। इन लोगों के पास इतना ज्यादा है, अभी भी उसके मुताबिक नहीं दिया है। प्रभु कहता काट दे जो जमीन रोक रहा है, ये वेस्ट है मेरे लिए, कोई काम तो कर ही नहीं रहा मेरा, इसको काटो। ये जगह घेर के बैठा हुआ है। और ये बात समझ रहे हैं ना आप, ये पेड़ की बात नहीं हो रही है, हम इंसानों की बात हो रही है। अगर हम जगह तो नहीं घेर रहे कि बेफिजूल प्रभु के लिए कोई काम ना करना, उल्टा रोका टाकी, किसी का चेक करने पैंट पाई है, किसी ने सूट पाया है, आप कुछ नहीं करना, दूसरों की नुक्ताचीनी, हम बहुत खतरे में हैं। फिर प्रभु कहता काट दे लोगे। और क्या हुआ, स्वामी ने, हालेलुया, हमारा स्वामी यीशु मसीह फिर तरस खाने वाला, कितना महान दयालु। कहता प्रभु इस साल और रहने दो, मेरा विश्वास है मैं इसे ठीक कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है स्वामी यीशु मसीह, परमेश्वर तो हमें खत्म करने वाला था, बीच में यीशु मसीह आ गया। वो कहता है मैं इस वर्ष और रहने दे, मैं इसको चारों ओर खाद डालूंगा, मैं इसके चारों ओर इसकी गलत संगति दूर कर दूंगा, चारों ओर इसको अच्छी खुराक दूंगा, चारों ओर इसका उठना बैठना सारा जो है
मसीही कर दूंगा, विश्वासी कर दूंगा। आमीन। और क्या होगा, कहता फिर आगे को फल लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो जो तेरी मर्जी है कर देना। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वो फल नहीं दे पाया, फल नहीं दे पाया। प्रभु ने क्या किया, उसे सुखा दिया, सूख गया। इज़राइल सूख गया। 1948 से पहले सन 70 में जो लोगों ने हाथ में बच्चे पकड़ के राजे को कहा था कि इसे सलीब पर चढ़ा, डाकू को छोड़ दे, इसका खून राजा तुझे डर लग रहा है हमारे ऊपर और हमारी औलाद पर हो। जब प्रभु को लेके जा रहे थे सड़क से, औरतें रो रही थी। पढ़ा है आपने कितने, शायद किसमें, लूका में अगर जाएं तो हम, औरतें चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। प्रभु कहता अब मेरे लिए मत रो। लूका 23 में रहे मेरे भाई, लूका 23 और उसकी 27 में जाएं, क्योंकि हर चीज़ वचन में मिलनी चाहिए। अगर वचन से मेल नहीं खाती तो फिर गलत हो जाएगा। लोगों ने मांग लिया इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। यीशु मसीह सलीब लेकर जा रहा है गली से। प्रभु करे दुआ में याद रखें, मार्च या अप्रैल में हमारा इजराइल का टूर प्रभु पास करे। प्रभु दुआ में याद रखें, हिम्मत दे प्रभु, हमारे रास्ते खोले कि मैं जा पाऊँ इजराइल में। आप भी, हमारा टूर जा रहा है मार्च अप्रैल में इजराइल में, और प्रभु करे हम ये जगह देखें सारी हम। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे वाली, बहुत सारी स्त्रियां भी उसके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। क्या कर रही थी, छाती पीट रही और विलाप कर रही थी। नो डाउट ये अच्छी बहनें हैं, तो प्रभु को प्यार करने वाली बहनें हैं, क्योंकि प्रभु के प्यार करने वालों ने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था। पर प्रभु देखिए क्या कह रहा है, कहता है यरूशलेम की पुत्रियों, पर्टिकुलर रोने वाली बहनों के लिए नहीं कह रहा जो उसके लिए रो रही हैं, समझ रहे हैं आप, उनको नहीं कह रहा प्रभु ये सख्त शब्द जो उसके लिए रो रही हैं। उसने बोला है तो सारे यरूशलेम की पुत्रियों को लिया, हे यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो, मैंने तो जिंदा हो जाना है। हालेलुया, मैंने तो जिंदा हो जाना, पर तुमने जो कर लिया ना, मांग लिया। तुम्हें नहीं पता कि मेरे राज्य में ये लॉ है कि जो मांगोगे वो पाओगे। अब आपने जो मांगा है, आप सोचो क्या मांगा है। आपने मांगा यही है कि खून किसका, मेरा, हमारे ऊपर हमारी औलाद पर हो। ये खून कोई इंसान का खून नहीं है, ये परमेश्वर का खून है। अब क्या हुआ, क्योंकि अब वो दिन आएंगे जब लोग कहेंगे कि अच्छा है जो बहन बांझ है। हो कितना देखिए भयंकर दिन की होगी। बांझ होना अच्छी खबर नहीं थी ना। प्रभु कहेगा अब उल्टा होगा। पहले जिस बांझ को लोग श्रापित कहते थे कि ये बहन बांझ है, इसे ना बिठाओ, घर में ना आने दो, श्रापित है, कहता वो समा आ रहा है उल्टा। अब लोग कहेंगे कि अच्छी बात है कोई बांझ है, धन्य है जो बांझ है, जो गर्भ में जो जने जिसके दूध ना पिलाया बच्चों को। उस समय तुम लोग पहाड़ों से कहोगे कि हम पर गिर पड़ो। हो क्या कहेंगे लोग, पहाड़ों को हम पर गिर पड़ो और टीलों से हमें ढांक लो, क्योंकि जब तुमने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया है। ओह हालेलुया, जब तुमने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या ना करोगे। आमीन। प्रभु कहता है इन्हें माफ करो, अपने औलाद के लिए रो। आगे प्रभु कह रहा है पिते इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखिए देखिए, ये शब्द ने दुनिया हिला दी। ये शब्द ने, ये सारे तख्त हिल गए जो प्रभु ने ये बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पेड़ सूख गया। सन 70 में 30 ने प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ाया। लोगों ने मांगा, बच्चे उनकी गोद में थे। सन 70 में जो बच्चे 30 में थे वो बड़े हो गए, नौजवान, और 30 वाले जिन्होंने खून मांगा था अभी वो भी जिंदा थे, और जो उनके बच्चे, दोनों जनरेशन जो थी 70 में पाई जा रही थी। ठीक है,
उन्होंने उसका श्राप कर्ज किसके ऊपर मांगा था? कहता है हम पर और हमारी औलाद पर। सन 70 का पीरियड प्रभु यीशु ने परफेक्ट पीरियड बनाया। बच्चे बड़े हो गए, बुजुर्ग अभी जिंदा थे। सन 70 में प्रभु ने खुद से ही रोम को, टाइटस को आज्ञा दे दी। रोम के किंग टाइटस को वो फौज लेकर आया, उसने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई। यहूदी कैसा ही मारा, आप इतिहास पढ़ें। जो टांगे थी घोड़े की वो आधी खून में डूबी हुई थी। यहूदियों का इतना कत्लेआम हुआ। किनका? अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश औलाद का ये सजा मिली है, नाफरमानी की। अब अगर वो अब्राहम के वंश, जिस्मानी तौर पर अब्राहम के वंश के साथ ऐसा किया उसने, हम जो लोग हैं अन्य जातियों वाले, जो कि फिजिकल तौर से अब्राहम से नहीं हुए हैं पैदा, बाय फेथ हैं, अगर हम भी अगर गड़बड़ी करेंगे तो याद रखें वो तलवार आज भी हम पर भी चलेगी। किन पर चली? जो मूसा के 10 हुक्मों को मान रहे थे, दिन रात हालेलुया आमीन कर रहे थे मंदिर में, लेकिन यीशु मसीह को ठुकरा दिया। आज भी मसीह जगत जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया है, ऐसी तलवार चलेगी, देखना। इसलिए आपको कहते हैं इस समय के संदेश को ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रभु ने सन 70 में टाइटस ने यहूदी मारे गए, पीटे गए बुरे तरीके से, यहूदी देश छोड़कर भागे। प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा था? हालेलुया, 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 परमेश्वर हालेलुया, यिर्मयाह हालेलुया, हालेलुया, 13 की 24, हालेलुया, हालेलुया, यिर्मयाह 13:24 हालेलुया, भाई, यिर्मयाह 13:24। देखिए, आप जब परमेश्वर आपको परमेश्वर आपको छुएगा, फिर ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। यिर्मयाह 13:24। अब सारी दुनिया में किसने भेजा? पेड़ को किसने सुखाया? अब देखिए, इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूंगा। बाइबल कोई कथा कहानियां नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। हालेलुया। प्रभु कहता मैं उन्हें ऐसा तितर बितर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन में तितर बितर किया जाता है। हालेलुया। क्यों तितर बितर किया? यहोवा की ये वाणी है, तेरा हिस्सा मुझसे ठहराया हुआ, तेरा भाग यही है क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा। आप झूठ पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर कहता मैं क्या करूंगा? तितर बितर होऊंगा। पूरे बाइबल में प्रभु ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है। भजन संहिता 44:11 में भी कहता है मैं तितर बितर करूंगा। लेकिन इसके साथ ही प्रभु ने एक भविष्यवाणी और कर दी। प्रभु कहता है मैं ही तितर बितर करूंगा और मैं ही इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करने वाला भी प्रभु और बिखेरने वाला भी प्रभु। प्रभु कहता है मैं तुम सबको पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, सारी दिशाओं से क्या करूंगा? कलेक्ट कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है तुझे मैं सारी दिशाओं से इकट्ठा कर लूंगा। और जिसने होशे नबी में कहता है 6:1 में परमेश्वर ने ही जख्म दिया है, परमेश्वर ही चंगा करेगा। कोई बाहर वाला नहीं करेगा। होशे नबी 6:1 में प्रभु कहता है कि जिसने जख्म दिया वही इकट्ठा करेगा। होशे नबी 6:1 प्रभु कहता है जख्म देने वाला वही, चंगा दवा दारू करने वाला भी वही। मैंने ही तुम्हें जख्म दिया है, मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा।
पृथ्वी की सारी दिशाओं से तुम्हें मैं इकट्ठा कर लूंगा। कहाँ करूंगा? यरूशलेम में। मैंने ही गाँव दिया, 6:1 में पढ़ी। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। क्यों फिरे? क्योंकि हम यहोवा से दूर हो गए थे, तो हमने क्या पाई? सजा पाई। यहूदी सारी दुनिया में तितर बितर हो गए। पर प्रभु क्या कहता है? यशाया में, हाँ जी, बाद में जाएंगे। जोएल 2:25 में भी कहता है कि 4 तरह की टिड्डियों ने मेरे उस पेड़ को सूखा कर दिया, पर मैं दोबारा से उसे हरा भरा कर दूंगा। जोएल की 2:25। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है। भाई सजा प्रभु ने दी है, माफी आप किसी और से मांग रहे हैं। अगर श्राप प्रभु का पड़ा हुआ है तो आप कहीं और किसी को मनाने में चले हुए हैं। उसी ने फाड़ा है और वही चंगा करेगा। उसी ने मारा, वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। लेकिन कितने दिन बाद? 2 दिन के बाद वो हमारे को जिंदा करेगा। अब 2 दिन बाद प्रभु ने किधर जाना है? इजराइल की तरफ। और प्रभु को आए को कितने दिन हो गया? 2 दिन हो गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द उधर जाएगा। आमीन। 4थी मोहर बंद हो जाएगी, 5वीं शुरू हो जाएगी इजराइल की। हम अनुग्रह और दया के पीरियड के लास्ट में रह रहे हैं। 30 ईस्वी में तो प्रभु सलीब पर थे, और आज देखिए 2022 चल रहा है। तो प्रभु कहता है 2 दिन बाद प्रभु ने उधर जाना है। 2000 साल बाद प्रभु उधर जाएगा। हमें कितने दिन दिए थे प्रभु ने? 2 दिन। 3 वर्ष उधर गया इजराइल में। 2 दिन का मतलब 2000 साल हमें प्रभु ने दिए थे। जोएल 2:25 में चले जाते हैं, जिससे आप सारी तस्वीर प्रभु की आप समझ जाएं। जोएल की 2:25 में लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर की उस पेड़ को 4 तरह की टिड्डियों ने खा लिया। जब आप जोएल 1 पढ़ेंगे, प्रभु कहता है अंजीर के पेड़ को 4 टिड्डियों ने खाया। शैतान कितने घोड़ों पर था? 4। मसीह विरोधी कितने घोड़ों पर था? 4। प्रभु कहता 4 तरह की टिड्डियां मेरे पेड़ को खा गई। पर और टिड्डियां जो थी उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि पेड़ की जड़ को खा सकें। अब फर्क देखना, अंजीर का पेड़ यहाँ पर भी है। जोएल की किताब में अंजीर का पेड़ हमने लूका में भी देखा। इस जोएल वाले अंजीर के पेड़ को शैतान ने हमला किया है 4 तरीके से। पेड़ को सुखा दिया, पत्ते सुखा दिए, फल सारे खत्म कर दिए, लेकिन जड़ को खराब नहीं कर पाया जिसमें जीवन था। आमीन है। आमीन। पर जो प्रभु ने जिस अंजीर को पेड़ को कर्ज किया है, डांटा है, प्रभु के वचन की ताकत देखिए और शैतान के हमलों की ताकत में फर्क देखिए। जब परमेश्वर अंजीर के पेड़ को डांट रहा है तो पूरी जड़ सूख रही है। आमीन। आमीन। पर जब शैतान प्रभु के उस पेड़ पे हमला कर रहा है तो वो जड़ को नुकसान नहीं कर पा रहा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा है कि अंजीर के पेड़ की जड़ मैं हूँ। आई एम द ट्रू वाइन। हालेलुया। यू आर ब्रांचेस। तुम ब्रांचेस को नुकसान पहुंचा सकते हो शैतान, पर जड़ को नहीं, क्योंकि जड़ परमेश्वर है। जीवन की जड़ परमेश्वर है। शैतान उसकी रचना को नुकसान पहुंचा सकता है, शैतान रचना के रचयिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया, ठीक है, कहता 2000 साल सूखा रहा पेड़। जोएल की 2:25 में प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी। प्रभु कहता अब तुम आनंद करो। फिर नीचे आए भाई जी, नीचे आए 2:23। तब प्रभु कहता है हे सिय्योन के लोगों, तुम परमेश्वर यहोवा के कारण अब मगन और आनंद करो। हालेलुया। समा निकल गया अब तुम्हारा। हालेलुया। हालेलुया। सजाओं का, मुश्किल मुसीबतों का समा निकल गया। आमीन। नाफरमानी ने सजाएं ले आई, आज्ञाकारी और बरकत लेके आई। आमीन। क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा क्या करने जा रहा है? बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से करेगा। आमीन। जोएल की प्रेरितों के काम 2:28
38 में 2 की शुरू से हो गई वर्षा, जबरदस्त हुई है, आमीन। पतरस ने क्या खड़े होके कहा, कहता परमेश्वर की भविष्यवाणी जोएल वाली पूरी हुई है, हालेलुया। कहता ये वर्षा हो रही है, आमीन। और पहले के समान ही अगली आखिरी पिछली हमारे समय वाली, अब रैप्चर से पहले वाली भी वर्षा करेगा, हालेलुया। एक आखिरी बारिश फिर से जबरदस्त होनी है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं ब्रदर। हालेलुया। 2 बारिशें हैं ब्लेसिंग्स की, एक प्रेरितों के काम 2 में हो गई थी, अब आखिरी जो है रैप्चर से पहले होने जा रही है। क्या होगी? मोजे चमत्कार, सुपर नेचुरल काम होंगे प्रभु परमेश्वर के, हालेलुया। फिर क्या होगा? हमारे देखिए आत्मिक बातें हैं ये, तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे, हमारे हृदय, हमारा ये जिस्म जो है बरकतों आशीषों से भरा होगा, और रस कुंड नए दाक मधु ताजे से उमड़ेंगे, इतना एक्स्ट्रा होगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जिन वर्षों के ऊपर अरबे नामक ये 4 तरह की टिड्डियां है, मसीह विरोधी 4 घोड़ों पर था। टिड्डियों ने अर्थात बड़े दल को, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, उन्होंने खा लिया था अंजीर का पेड़, मैं और सारा नुकसान भर दूंगा, हालेलुया। आमीन है, प्रभु का धन्यवाद। फिर क्या होगा? तुम भेंट पर के खाओगे, मैं वापस तुम्हें इकट्ठा करूंगा, सुखाया हुआ पेड़ दोबारा हरा भरा कर दूंगा, सारी दुनिया से कहूंगा आ जाओ, वापस आ जाओ। सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब प्राणियों पर। और क्या होगा? बारिश के दिनों में तुम पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या होगा? सपने, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तरफ से तुम सपने देखोगे, हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और यहाँ तक मेरे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या होगा? चमत्कार, सुपर नेचुरल मोजे चमत्कार होने हैं, याद रखें। और होने सिर्फ उन पे है जो मेमने की किताब समझदार को आई है, जो स्वर्ग जाने वाली है। और मैं क्या करूंगा? मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा, अर्थात लहू आके खंबे दिखाऊंगा। और यहोवा के उस बड़े दिन के आने से पहले सूर्य अंधियार और चंद्रमा का रक्त सा हो जाएगा। जब हम मूर्ख लोग, संस्थाएं के लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे पास तेल नहीं है, वो मांगना शुरू कर देंगे, उसी वक्त यीशु मसीह आ जाएगा। थोड़ा यशाया में जाएंगे, यशाया में जाएंगे। प्रभु कहता है, ओ तू कहेगी मैं तो बांझ थी। जी यशाया में जाए, मैं वर्ष बता रहा हूँ। है इज़राइल तो कहती थी मैं तो बांझ हो गई थी, इतने सारे बच्चों को किसने जन्मा दिया। यशाया में एक प्रभु ने भविष्यवाणी की है। यशाया में जाएं, और ये जरूरी है पढ़नी, ताकि आपका सारा कनेक्शन जो है वो समझ आए आप। प्रभु कहता मैं तो तू तो कहती थी मैं बांझ थी, इतने बच्चों को किसने जन्मा दिया। यशाया में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, किसने जन्मा दिया इतने सारे बच्चों। यशाया में आखिरी कुछ किताबों में ये भविष्यवाणी है। यशाया 49, यशाया 49, यशाया 49 निकाले, फिर आप समझ जाएंगे। अब प्रभु परमेश्वर ने इनको सारे दुनिया में घुमाया। प्रभु परमेश्वर कहता है ये कि लोग ये कहते थे कि परमेश्वर हमें भूल गया हुआ है। ये शायद देखो लिया आपने। चलिए अब पढ़ते हैं हम 14 आयत में। हे सियोन, परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। इजरायली कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। भाई 2000 साल हो गया, उसने हमारी कोई सुधि नहीं ली। 1970 से हम यरूशलेम से निकले हुए हैं, तितर बितर हैं। प्रभु कहता ये लोग कहते हैं कि यहोवा ने हमें त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या ये हो सकता है कि माता, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, क्या माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है?
क्या वो जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? प्रभु कहता हाँ, वो माता भी भूल सकती है परंतु मैं कभी नहीं भूलता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। 14 आयत भाई जी, हाँ 14। प्रभु कहता मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। क्यों? आपने भाई यशाया निकाला? हाँ, ये भाई जिनमें यशाया नबी की किताब निकाले। यशाया 49 की 14 से आपने शुरू करना है जी। यशाया 49। पर दुआ करें इसके लिए अलग से हमारे पास पूरा सिस्टम हो इस पे चलाने के लिए। सियोने का यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या ये हो सकता कोई माता अपने बच्चे को भूल जाए? कोई जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। क्यों? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शार्पना हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहती है। अब जो तू कहती थी मैं बांझ हूँ, इजराइल यरूशलेम मैं सूख गया पेड़, तेरे बच्चे फुर्ती से आ रहे हैं। आप गूगल से निकाले 1948 में जहाज भर के यहूदियों के वापस कहाँ आए थे? इजराइल। वही इजराइल कहता था हम खाली हैं। वही इजराइल को अब स्टेटमेंट दिन ब दिन डालते हैं इजराइल कि हमें और जगह चाहिए, हमारे यहूदियों के लिए जगह कम है। वो फिलिस्तीनियों की जगह पर अब लगे होते हैं ना, जो झगड़ा चलता है। क्यों? प्रभु कहता देख, तेरे बच्चे फुर्ती से आ रहे हैं और तेरे खंडर बनाने वाले, जिन्होंने तुझे खंडर बनाया था, उजाड़ा था, तेरे बीच से दूर हो रहे हैं। अब आंखें उठाकर चारी ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। 1948 में ये वचन पूरा हो गया। यहूदी सारी दुनिया से जो तीतर बीतर किए थे प्रभु ने इकट्ठे कर लिए। किसकी वाणी है? यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ। हालेलुया। मेरे जीवन की शपथ, तू उजाड़ थी ना, तू निश्चय सभी को गहनों के समान पहनेगी। हालेलुया। आमीन। जो लोग कहते थे यहूदियों का कोई देश नहीं है, वही देखिए कहेगा इजराइल यहूदियों का देश है। आमीन। हालेलुया। तो दुल्हन के समान होगी, तेरे सब बांध लेगी। हालेलुया। जो तेरे स्थान सुनसान उजड़े हैं, तेरे देश खंडर ही खंडर में निवासी नहीं समाएंगे। हो गया वचन पूरा। और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। जो पुत्र तुझसे ले लिए गए थे, जो तुझसे ले लिए गए, फिर तेरे कान में आकर कहेंगे ये स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे। हालेलुया। फिर तू इजराइल कहेगा मेरे लिए किसने जन्मा दिए? इतने बच्चे कहाँ से आ गए? मैं तो बंजर था, इजराइल इतना यहूदी कहाँ से आ गया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, मैं तो गुलामी में थी, यहाँ वहाँ घूमती थी सारी दुनिया में यहूदी। और किसने इनको इतने दिन पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा ये कहता है, देख मैं जवाब देता हूँ, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों पर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे। जहाजों पे जहाज यहूदियों के वापस आ गए इजराइल में, पुत्रों को गोद में लिए आएंगे, तेरी पुत्रियों को अपने कंधों पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों को निज सेवक और रानियां दूध पिलाने के लिए दाएं होंगी, वह अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू जान लेगी मैं यहोवा हूं। तब तू जान लेगी कि जो यहोवा की बाट जोड़ने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। अंजीर का पेड़ तो प्रभु ने 1948 में हरा भरा कर दिया। प्रभु कहता अंजीर के पेड़ को देखो, 1948 में हरा भरा हो गया। प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ पीढ़ी का अंत ना होगा, मनुष्य का पुत्र आना हो जाएगा। अब आप 1948 से देख लें पीढ़ी कितनी लंबी चलेगी। कोई बुजुर्ग पकड़े जो 1948 में पैदा हुआ है, उसका अगर कोई 1948 से कोई बुजुर्ग है भी है तो उसका कितना समा और पड़ा होगा जमीन के ऊपर। भजन संहिता 90 में लिखा हुआ है मनुष्य की उम्र यहोवा ने 70 वर्ष, अगर अच्छा खाता है तो 80 वर्ष भी जिंदा रह सकता है। आप देख लें कितनी लंबी के ही जनरेशन है। प्रभु कहता है कि उस पीढ़ी का अंत ना होगा, मनुष्य का पुत्र। हम बिल्कुल किनारे पर हैं प्रभु यीशु मसीह के। हमें तो सिर्फ अपने हृदय से ईमान रखना है
विश्वास रखना है। इस सुंदर कलाम के लिए, इस डिवाइन रेवलेशन प्रकाश के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जितना भी शुक्र गुजारी करनी अभी बहुत कम है जितना प्रभु ने दे दिया है हमें। पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, जिधर भी कोई कहता था चल पड़ते थे, लेकिन अब हम सही अपने रचयिता के पास वापस आ गए हैं। प्रभु का आना, प्रभु का आना, तैयारी का समय। प्रभु ने जब ये मत्ती 24 लूका 21 में आखिर में कहा है, कहता दुनिया की चिंताओं से तुम सुस्त ना हो जाना कि तुम्हारे ऊपर अचानक ये दिन आ जाए, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, आत्मिक तौर पर यानी तैयार रहो, जूतियां तुम्हारियां कसी रहे, रूहानी तौर पर हम पूरी तरह से तैयार हो, हमारे दिए जलते रहे और हम हर समय प्रभु की आमद का इंतजार करते रहें। बहस में कहीं में नहीं जाना हमने, किसी बहस में नहीं पढ़ना हमने। जहाँ बहस शुरू हो जाती है वहाँ उठकर आ जाएं आप। उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करें जिसका बाइबल जिसके लिए संपूर्णता नहीं है, वहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना में अपने विरोधियों को दें, अपना ध्यान रखें, कहीं हम इस आखिरी समय में, आखिरी दौड़ में बीच में ही ना थक जाएं। सफ़र पूरा करें आप। ऐसा ना हो 2 महीने बढ़िया चलें आप, उसके बाद ठंडे होकर घर बैठ जाएंगे तो उनके लिए मामला ज़्यादा खराब होगा। प्रभु कहता है कुछ का न्याय, जिन्होंने वचन नहीं पाया उनका न्याय बिना वचन से होगा, जिन्होंने वचन पाकर गुनाह किया उनका न्याय वचन से होगा। आइए हम प्रभु के हजूरी में जाएं और प्रार्थना में जाएं और प्रभु से मांगे। प्रभु जी इस गहरे भेद के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो प्रभु जी कि हमारे पास आपकी आमद का मैसेज है। आप आ रहे हैं प्रभु जी, आपकी आमद का मैसेज है। प्रभु हमें आप अपनी आमद के लिए तैयार करें, रहम करें, कृपा करें प्रभु जी। आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी, हम तैयार हैं। हम अपने हृदय से आपके इस वचन को ग्रहण करें, आमीन करें, कबूल करें। और प्रभु जी हम गुनहगार हैं, पापी हैं, हमारे पापों को माफ करें प्रभु जी। मंडली पर दया रहम कृपा करें। सारी आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम दया रहम कृपा करें प्रभु जी। तेरा शुक्र तेरा हमारे वापस जाने में मदद सहायता करना। जितना भी समय जमीन पर रह गया हुआ है आपके डर और खौफ से निकले, आपकी दुआ प्रार्थना में निकले, कलाम पढ़ने में निकले। जितना भी समय रह गया है ईमानदारी से निकले। हालेलुया, तेरा शुक्र। एक एक भाई पर रहम करें, तेरा ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम स्वर्ग की प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता जो आप स्वर्ग पर हैं, आपका नाम पाक पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहता है, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन के ऊपर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया। हमें आजमाइश में ना जाने दे बल्कि बुराइयों से बचा के रख, क्योंकि सारा राज्य परिक्रमा प्रभु यीशु मसीह आपकी है। अब यीशु मसीह का प्यार, अनुग्रह, दया, कृपा, संगति अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ रहे। प्रभु आपके सबके साथ हो, हम एक दूसरे को मिल सकते हैं।